नमस्कार फरीदाबाद। आप देख रहे हैं फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं फतेहपुर बिल्लोच में। आपको बता दूं कि आर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रताप वशिष्ठ। उनकी पुत्र वधू हमारे साथ हैं। एक डॉक्टर नाम के सामने जुड़ने से कितनी खुशी होती है और कितनी मेहनत लगती है वो जानेंगे। हमारे साथ आज पीएचडी करी है मानव रचना कॉलेज से। टॉपिक भी रहा है इंडिया पार्टीशन और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन पर जो पीएचडी करके आज घर पहुंचे हैं, कितनी खुशी हो रही है। किस तरीके का स्वागत आपका घर आने पर किया। So I have done PhD in partition literature. The topic was representation of the partition in the selected words done by the poets. I have taken 6 poets and I have taken 24 poems, and it was a journey of 4 years. It was very difficult. The hard work, the patience, the courage, it was all needed. And being a married woman and having a child, and I was working as well, so it was very difficult for me. I was enrolled from 2021 and I was awarded in 2025, and today was the convocation day. So it was difficult, but that is the sweetness of the work which I have done, and that is what it is, and everyone should do it. क्या सोच करके इंडिया एंड पार्टीशन पाकिस्तान, क्या So टॉपिक basically, आपने लिया। India is the origin when Pakistan was separated from India. So before partition, India was the one, and after that, the partition was divided, and Pakistan became another origin. So that is the core of India. So that is what we are as individuals. And I've taken basically Indian mindset, the Muslims, the Hindus, which we regularly see whatever happened, the murders, the rapes, the trauma which every individual, even the scars are still there in people's heart. So that is the reason I've taken, because we Indian as a core are very much connected to our country, and our country was separated from Pakistan. So that is the reason I've taken, because we are at the core, we are the Indians. 2021 का आपका बैच है, 2025 पास आउट है। डिग्री मिली है। कौन सेलिब्रिटी रहे या कौन राजनेता रहे जिन्होंने डिग्री आपकी। So I was awarded, the award was given by JP Nadda ji. There were a lot of, dignitaries. For example, there were judges, there was a gold medalist. I will be sharing the name with you. So there was a lot of, even the VC, the chancellor of Manavachana University. Everyone was there. All the HODs, deans, people came from different origins. So everyone was there. But the main chief guest was JP Nadda ji. कितना समय लगा और क्या क्या मुश्किलें भी आपने देखी होंगी, क्या क्या टॉपिक पढ़े होंगे जिसके बाद ये एक टॉपिक इंडिया पार्टीशन ऑफ इंडिया आपने चुना। So in 2021, I've completed my master's. So after that, I've enrolled in my PhD. 1 year is for the coursework, so that is not counted. In 2022, I've taken the topic of partition, but at that time, I've taken the novels. But the guide, which was my supervisor, she suggested that novels are already well explored. So let's not go into that. You to take something different. So when that was a back and forth, I have to go read again and again. The novels I've taken short stories, and that was declined by the by the team of the DRC members. Then I have again taken the novels. Then that was also declined. Then I've thought that why not poems? Because when you search on the different platforms, Shodh Ganga, Shodh Gangotri, there is no poems as such. So I thought that let me do that will be a new research. Like research means something which is not done before. So I was like, I will take the poems, and you can search on Shodh Ganga, Shodh Gangotri. My topic is never been researched by any scholar till date. So my topic is very new. कैसा फील होता है नाम के सामने डॉक्टर। सपना था, बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप का सपना था और पूरा हो गया। कितना सपोर्ट रहा, हस्बैंड भी आपके साथ बैठे। मेरा को बहुत सपोर्ट रहा है हस्बैंड का, नो डाउट। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, इन लॉज का, बेसिकली मेरे पेरेंट्स का, बिकॉज बिफोर मैरिज मैंने इनरोल कर लिया था। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं होती। सो मेरे पापा का ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे को डॉक्टर चाहिए उनको मेरे नाम के आगे। और मैं अपने से ज्यादा सिर्फ उन्हीं को बोलूंगी कि बिकॉज ऑफ हिम, माई ब्रदर, माई मदर, नॉट इवन मी, नॉट एनीवन एल्स, बट ये 3 लोग हैं जिनकी वजह से आई एम हु आई एम। डॉक्टर नाम बहुत बड़ी उपाधि होती है, पीएचडी करना
तो क्या इंस्पायर करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, Just कोचिंग भी don't ले रहे हैं, lose hope. It will be a hustle. It will be a journey full of challenges. रोज नया चैलेंज आएगा. कभी गाइड नहीं और सपोर्ट करेगा, कभी टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, कभी कुछ नहीं होगा. बट ट्रस्ट मी, दैट डॉक्टर विच विल कम इन फ्रंट ऑफ योर नेम will make you the calmest and the patience person, and you will be feel that happiness which cannot be described or cannot be done by anything else. So that is the curse you have to do. If you have to, you want to achieve your goals, just work hard. डॉक्टर महिमा हमारे साथ थी, जिन्होंने पूरे एक एक टॉपिक को बताया कि जो टॉपिक चुना वो इंडिया पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान को लेकर के चुना, और बहुत सारी मेहनत, एक नाम के सामने डॉक्टर लगने में उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो समय दिया है डॉक्टर के लिए, बता रहे हैं कि फैमिली चाहती थी कि नाम के आगे डॉक्टर लगे, और कहीं ना कहीं साथ हस्बैंड का भी और लॉज का भी रहा है, क्योंकि ग्रामीण आंचल से हैं और ग्रामीण आंचल से कोई इतनी बड़ी उपाधि डॉक्टर की ले, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी साथ बहुत दिखा होगा। क्या क्या, मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या और कुछ ऐसी कठिनाइयाँ लगी होंगी, मतलब कुछ ना कुछ फेस किया नहीं, होगा? मतलब मेरे पास ऐसी कोई सैड स्टोरी नहीं है शेयर करने के लिए, पर क्योंकि फैमिली सपोर्टिव थी, माय पेरेंट्स साइड, इन लॉज में इन लॉज भी सपोर्टिव है। पीएचडी के बाद क्या करना है? पीएचडी पोस्ट डॉक। कहाँ से कुछ कोई सपना हो? इंटरनेशनली होती है या फिर साउथ साइड होती है, तो वो तो शादी से पहले ही बात कर ली थी कि हमें करनी ही है वो, क्योंकि इंडिया में आई थिंक बहुत ही कम है। पीएचडी तो स्टिल मिल जाएंगे बट पोस्ट डॉक नहीं मिलता है, तो वो तो मुझे करना ही है। और मेरी लाइफ में वाला ऐसा सच कोई सैड स्टोरी है नहीं। जो ऐसा कोई एम कि मेरे को पढ़ के यहाँ एक रैंक की पोस्ट चाहिए, चाहे वो सर्विस की हो या कुछ? ऐसा मेरा नहीं है। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मुझे आईएएस, नहीं, मुझे जो इतना मुझे मिल रहा है, मुझे अपनी एजुकेशन करनी है। आई डोंट वांट टू बी एट अ सर्टेन डेजिग्नेशन। आई हैव माय मतलब डायरेक्टर सर का है सब कुछ, बट वो इवेंचुअली हमको हैंडल करना है, तो मैं उस चीज में आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कोई अनरियलिस्टिक चीजें नहीं करनी है, मुझे अपनी चीजों में अच्छा लगता है, और मुझे सिर्फ एजुकेशन करनी है। दैट इज माय ड्रीम, नथिंग कि मुझे ये चीज अचीव नहीं। एजुकेशन के साथ साथ क्या आप भी देख रहे हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है? अभी तक मेरे फादर ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आगे तो कहीं ना कहीं सहयोग। मैं YMCA में जॉब करती हूँ, एंड अभी के लिए आई एम वेरी हैप्पी देयर, एंड ही इज वेरी मच हैंडलिंग द स्टफ वेल, सो आई डोंट वांट टू जस्ट इंटरवीन माई सेल्फ एंड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। सो आई वांट हिम टू हैंडल until unless he handles it, after that I will handle। और मेरे लाइफ में ऐसा कोई सैड स्टोरी नहीं है कि इन लॉज ने कोई वो करा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव थे, इन लॉज ने बहुत हेल्प करी है। पेरेंट्स के थ्रू ऑब्वियसली वो हो गया। उसके बाद बहुत लोग होते हैं, जैसे हमने भी पीएचडी में देखा है कि लोग शादी से पहले कर लेते हैं, शादी के बाद वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज इन लॉज का सपोर्ट नहीं होता, हस्बैंड का नहीं होता। मेरे हस्बैंड रात भर मेरे साथ पीएचडी में, वो प्रूफ रीडिंग कहते हैं हम उसको, वो करते थे बैठ के। स्कोपस में हम लोग पेपर पब्लिश कराते, तो उसमें कि इसमें कर देते हैं, और उसमें बैक एंड फोर्थ करना पड़ता है कि कोई गलत क्लोन में तो नहीं जा रहा, तो उसमें भी हेल्प। तो मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बहुत ही स्ट्रगल मैंने देखे, ऐसा नहीं है। आज खुशी है डॉक्टर लगाए नाम? बहुत खुशी है। देखिए हमारे साथ है जिन्होंने अभी पीएचडी की, और केआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं उनकी पुत्र वधू, उन्होंने पूरे विस्तार से बताया कि पूरी मेहनत जी जान पीएचडी करने के लिए उन्होंने लगाई। बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने चुना, और कहीं ना कहीं एक डिग्री देने के लिए जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, और मानव रचना यूनिवर्सिटी उन्होंने चुनी अपने जीवन को लेकर के, और आगे भी एजुकेशन में आगे रन करना चाहते हैं, और पीएचडी से आगे पोस्ट डॉक करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ी अहम भूमिका जो पति की होती है वो उनके हस्बैंड ने वो करके दिखाया। कहीं ना कहीं एक लेवल भी बनाया है, क्योंकि पीएचडी बहुत कम लोग कर पाते हैं, मास्टर्स करने के बाद कर पाते हैं। इवन आज भी हम 2 दिन से सोए नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को जल्दी आते हैं, लेट आते हैं। तो आज भी 6 बजे उठ गए। मैं नहीं उठ रही थी, पर नहीं, उठना है। YMCA यूनिवर्सिटी के अंदर आप जॉब करते हैं, क्या सब्जेक्ट? इंग्लिश।
इंग्लिश। हाँ। तो क्या बीटेक है कि सारे स्ट्रीम्स को पढ़ाते हैं, बीटेक है, एमटेक है, बीवॉक वोकेशनल कोर्सेज है, कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्किल डेवलपमेंट में पढ़ाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलते हैं एज पर द सेमेस्टर्स एंड एज पर द एलोकेशन ऑफ द टीचर्स। तो वो होता है। तो अगेन जॉब भी कर रही हूँ। ही ड्रॉप्स मी टू द यूनिवर्सिटी। वो सुबह वही जल्दी उठना होता है, शाम को जल्दी आना होता है। तो वो पूरा हसल मेरे साथ हैंड इन हैंड कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं और है। वो मुझे कैब से भी ट्रैवल नहीं करने देते। कहते नो, आई विल बी कमिंग, आई विल बी। सो ही इज देयर एंड दैट इज द रीजन आई कल डन। ना कल यूनिवर्सिटी के अंदर नाम के सामने डॉक्टर लग चुका है। लग चुका है। लग चुका है। तो बच्चे भी पूछेंगे कि कहाँ से किस टॉपिक पर बातचीत करें, किस तरीके से स्टूडेंटों को बताएंगे। तो मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था और मेरे को 2 हफ्ते हो गए हैं बिकॉज आई हैड अ बेबी। सो मैंने ड्रॉप कर दिया था बट मैंने रीज्वाइन करा। तो मैंने वो सारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि पार्टीशन लिटरेचर पे है, इंडियन पाकिस्तान के ऊपर है, बिकॉज इंडिया इज आवर कोर। मतलब आप इंडिया को हम लोगों के अंदर से नहीं निकाल सकते हो। तो दैट इज द रीजन मैंने इंडिया वाला टॉपिक लिया था। पोएम्स किसी ने करी नहीं है इसलिए पोएम्स ली थी। सो दैट्स इट। यही बताती हूँ सबको। बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब वो एक सपना होता है ना, एक माइलस्टोन आप हिट कर देते हो। फिर अब आपको लगता है कि नेक्स्ट टास्क क्या होगा, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या होगा। तो वो नेक्स्ट मेरे को ढूंढना है। देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जी, पूरे विस्तार से बताया और क्या क्या कितनी मेहनत रही, किस किस की क्या क्या भूमिका रही, वो भी पूरे एक एक करके बताया। सर तो बोल ही नहीं रहे। सर बोलेंगे सर क्या, के पास कैसा आपकी बात नहीं। कैसा फील हो रहा, थोड़ा ये बताएंगे क्योंकि नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना। अच्छा नाम तो बताएंगे। देखिए कहीं ना कहीं एक खुशी है और खुशी किस तरीके की है वो जाहिर भी कर रहे हैं। और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया, उनकी पत्नी ने हासिल किया और वो भी ग्रामीण आंचल से निकलकर एक पीएचडी की डिग्री उन्होंने प्राप्त की और कहीं ना कहीं गोल जो है वो पीडॉक में वो अपना पूरा करना चाहते हैं। अगले अपडेट के साथ जोड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए फरीदाबाद 24/7 न्यूज जयप्रकाश के साथ।